مہربانی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخو پورہ کے شیروں، نواز شریف سے محبت نہیں عشق کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، میں جب شیخوپورہ آتی ہوں پورے کا پورا شیخوپورہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے. اگر یہ ورکرز کنونشن ہے تو عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں شیروں؟ آپ سب کو نواز شریف کا سلام. بولو وعلیکم السلام. آپ سب کو اس نواز شریف کا سلام، اس شیر کا سلام، اس بہادر لیڈر کا سلام جس نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا شیخوپورہ والوں، جاوید لطیف صاحب، نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. تو شیخوپورہ والوں گواہی دو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو. گواہی دو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ تو نہیں گیا. تو نہیں گیا جس نے اپنے منہ سے یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. کوئی رہ گیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف ایکسپوز کر دیا بلکہ ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا؟ جو رہ گیا نا منہ سے خود بولے گا، انشاءاللہ خود اگلیں گے. ہر کوئی سچ بولے گا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی. کل سازش کا ایک بہت بڑا کردار ڈیم والا بابا ثاقب نثار، جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لیے بابا زحمت ثابت ہوا. پاکستان کے لیے سب سے بڑی زحمت ثابت ہونے والا ثاقب نثار کل اپنے منہ سے بول اٹھا شیخوپورہ والوں، کہنے لگا مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت اذان کی بریک لی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف سے محبت کرنے والے شیروں، آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت نماز اذان کا بریک لیا گیا ہے اور شیخوپورہ میں پارٹی کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. اس وقت
مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی کہ اس وقت اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے۔ مریم نواز کی تعداد میں کل شیخو پورہ میں تنظیمی اجلاس بھی ہوگا۔ آپ اس وقت براہ راست ہماری اسکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخو پورہ میں ہو رہا ہے۔ کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کارکنوں کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر پنڈال میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں، نواز شریف سے محبت کرنے والے شیرو آپ کو میرا سلام۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخو پورہ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگوں کو نواز شریف کا سلام۔ شیخو پورہ والوں، کل وہ ڈیم والا بابا زحمت ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا، یہ پورا سچ بھی بولے گا، یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے۔ وہ کچھ لوگ شیخو پورہ والوں، یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے۔ میں نہیں ڈرتی، میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے، بتاؤ قوم کو۔ ڈیم والے بابا جی، قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی، کس طرح تم نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا، تاحیات 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، تاحیات بیٹے سے تنخواہ
किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है मरियम नवाज शरीफ। मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी यहां पर खड़ा है, इसको नाअहल किया। चुन चुन कर इस बाबा ज़हमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा ज़हमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था। शेखुपुरा वालों, फिरौन बना हुआ था, लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान। और सुनो शेखुपुरा वालों, साकिब निसार कहता है कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के आवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसने सच बोलना होता है ना, नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों, जरा लतीफा सुनो। साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ। तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई, गरीब की रोटी हैक हो गई, गरीब का मुस्तकबिल हैक हो गया, अवाम का मुस्तकबिल हैक हो गया, नौजवानों का मुस्तकबिल हैक हो गया। और फिर इतनी दीदा दिलेरी से कहता है मैं पागल हूं, इंटरव्यू दूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है। तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल है, कौम के बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं था तुम्हें? बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर, ये जो मेरे नौजवान खड़े हैं, इनका मुस्तकबिल अंधेरे में धकेल कर इसको अपने बच्चों की फिक्र लाहक हो गई, कौम के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। कौम के बच्चे रुल गए और इसका बेटा आज भी लंदन में ऐश कर रहा है। काश जितनी फिक्र तुमने अपने बच्चों की की, उतनी फिक्र तुमने कौम के बच्चों की भी की होती, तो आज पाकिस्तान का ये मेरे नौजवानों, ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं। आप सबको मुबारक हो।
सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार झूठा कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। शेखुपुरा वालों, मैं आपसे पूछती हूं, आधा सर्टिफिकेट कौन सा होता है? कोई सदाकत और अमानत का आधा सर्टिफिकेट होता है? कल इसने, मुबारक हो शेखुपुरा वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया कल। और ये पूरा सर्टिफिकेट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इसको पता था कि इस इमरान खान ने अभी बड़ी बड़ी चोरियां करनी है। वालों, कौम पूछती है कि साकिब निसार, तुमने एक बद किरदार शख्स को, बद तहजीब शख्स को, बदउन्वान शख्स को, नालायक शख्स को, नाअहल शख्स के हवाले 22 करोड़ अवाम की किस्मत क्यों दी थी? क्यों उस शख्स के हाथ में 22 करोड़ अवाम की किस्मत दी थी? जागती 22 करोड़ अवाम की किस्मत एक मंशियात ज़दा शख्स के हवाले क्यों की थी? बोलो। जिसकी जगह पुलों के नीचे, शहबाज शरीफ के बनाए हुए फ्लाईओवर्स के नीचे नशइयों का पता है ना कहां पड़े होते हैं? कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। ऐसे शख्स को जो अपने होशो हवास में नहीं होता, उसको लाकर वजीर आजम के दफ्तर में बिठा दिया। बोलो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा 22 करोड़ अवाम के साथ? एक और ये सिर्फ नाअहल, नालायक, बद किरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का सबसे बड़ा बुज़दिल है। बोलो, सारे बोलो, बोलो, गीदड़, गीदड़, गीदड़। ये देखो, सब बोलो। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं अगर तहरीक इंसाफ की फॉलोअर होती तो मैं तो शर्म से मर जाती। एक बुज़दिल को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया। बोलो शेखुपुरा वालों, एक बहादुर कौम का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? बहादुर शेखुपुरा का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? जब से मुकदमात शुरू हुए घर से नहीं निकला, टांग पर प्लास्टर चढ़ा के बैठा है। छतों के लेंटर खुल जाते हैं, इस 5 महीने से इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतर रहा। और आज एक और बात, लतीफा सुनो शेखुपुरा वालों, आज एक और लतीफा सुनो। आज कोर्ट में इसकी पेशी थी तो जानते हो इसके वकील ने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो इमरान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकता क्योंकि माजूरी की हालत है। पहले टांग पे प्लास्टर चढ़ा के बैठा था, अब कहते हैं मैं माजूर हूं, मैं अदालत नहीं आ सकता। तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको?
बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? तब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है, जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना कर ले, लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये गाना बंद करो। उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट कर आई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिदो बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी। तो शेखुपुरा वालों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों,
बात माजूरी की नहीं, बात प्लास्टर की नहीं, बात बीमारी की भी नहीं, बात ये है कि कांपे टांग रही हैं। प्लास्टर ज़दा टांगे कांप रही हैं, क्योंकि केसेस झूठे नहीं, केसेस सच्चे हैं। पेश होता है तो फंसता है, और अगर अब पेश नहीं होगा तो फंसेगा इंशाअल्लाह। शेखुपुरा वालों, इसके केसेस बेटे से तनख्वाह लेने वाले नहीं, इसके केसेस हसन नवाज शरीफ से फर्जी तनख्वाह लेने का नहीं, इसका केस इकामा, वो भी एक्सपायर्ड इकामा रखने का नहीं। इसने ऑफशोर कंपनी छुपाई, इसने तोशाखाना के तोहफे छुपाए, इसने अपनी बीवी के लिए हुई रिश्वत 5-5 कैरेट का हीरा, वो अंगूठियां छुपाई, इसने फॉरेन फंडिंग के अकाउंट्स छुपाए, इसने जो तोशाखाना को बेचकर जो अरबों रुपया बनाया, इसने वो छुपाया। इसने 190 मिलियन पाउंड, जो 55 अरब रुपया बनता है, उसको सिर्फ आवाम से नहीं, अपनी काबीना से भी छुपाया। और सिर्फ चोरियां नहीं छुपाई, इसने अपनी बेटी भी कौम से छुपाई। शेखुपुरा के गैरत वाले शेरों, कोई अपनी बेटी के बारे में झूठ बोलता है? नवाज शरीफ आज फख्र से कह सकता है कि मरियम नवाज शरीफ मेरी बेटी है। क्या ये कौम की आंख से आंख मिलाकर कह सकता है कि टिरियन वाइट मेरी बेटी है? जो शख्स अपनी बेटी को ओन ना कर सके, थू है, तुफ है उस शख्स के ऊपर। और सोचो, अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो। तो नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की हुई थी, उसने तो तलाशी दे दी। अपनी नहीं, अपनी बेटी की भी दी, अपने खानदान की भी दी, अपनी 3 नस्लों की भी दी, अपनी जमात की भी दी। अब कौम तुमसे पूछती है, तोशाखाना चोर कौम तुमसे पूछती है, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? शेखुपुरा वालों, बड़ा मजा आ रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हो। ये भी सुनो शेखुपुरा वालों, ये भी सुनो। भाषण देता है, सुन सुन के कान पक गए हैं। कौम को भाषण देता है, खौफ के बुत तोड़ो। क्या कहता है? और जब कल जमान पाक, बल्कि जमानत पाक पुलिस पहुंची, तो बिस्तर के नीचे, बेड के नीचे, चारपाई के नीचे छुप गया। जब तक पुलिस